ایوان بالا میں فوجداری قوانین 2023 میں ترمیم کی منظوری۔ سینٹ نے ریپ متاثرہ خواتین کو میڈیکل ایڈ دینے کا بل منظور کر لیا۔ متاثرہ خاتون کو طبی امداد کی فراہمی سے انکار پر اسپتال انچارج کو سزا بھگتنا ہوگی، جو 1 سال قید یا جرمانہ یا باقیات وقت دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اسپتال کو طبی امداد کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی دینا ہوگا۔ بل کے متن کے مطابق اسپتال انچارج کو 1 سال تک قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔ نجی اسپتال فوری طبی امداد دینے کے بعد 24 گھنٹے میں کیس سرکاری اسپتال کو ریفر کرنے کا پابند ہوگا۔ سرکاری اسپتال میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا پابند ہوگا۔ آپ کو بتائیں اہم خبر ہے، ایوان بالا میں فوجداری قوانین 2023 میں ترمیم کی منظوری۔ سینٹ نے ریپ متاثرہ خواتین کو میڈیکل ایڈ دینے کا بل منظور کر لیا۔ متاثرہ خاتون کو طبی امداد کی فراہمی سے انکار پر اسپتال انچارج کو سزا بھگتنا ہوگی۔ آپ کو بتائیں جو 1 سال قید یا جرمانہ یا باقیات وقت دونوں سزائیں کی جا سکتی ہیں۔ اسپتال کو طبی امداد کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ لازمی دینا ہوگا۔ بل کے متن کے مطابق اسپتال انچارج کو 1 سال تک قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں مل سکتی ہیں۔ نجی اسپتال فوری طبی امداد دینے کے بعد 24 گھنٹے میں کیس سرکاری اسپتال ریفر کرنے کا پابند ہوگا۔ سرکاری اسپتال میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا پابند ہوگا۔ خبر آپ کو دیں، کم عمر کی شادی پر اہم خبر، اب 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چنیوٹ نے نکاح خان اور یوسی سیکٹرز کو حکومتی حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چنیوٹ غلام شبیر کا کہنا تھا، فیڈرل اور سندھ حکومت کے بعد پنجاب میں بھی لڑکی کی شادی کے لیے عمر 18 سال بذریعہ نوٹیفیکیشن مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا مزید کہنا تھا، کم عمر کا نکاح درج یا پڑھانے والے کو 1 سال سزا اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ سہولت کار یا گواہان کو زیادہ سے زیادہ 3 سال، کم از کم 2 سال سزا، 3 سے 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ خبر ہے چنیوٹ سے، فیسکو کی ڈیٹ ڈیفالٹرز کے خلاف بڑی کارروائی۔ ماہ جنوری میں 1.5 کروڑ سے زائد کی ریکوری، بل ادا نہ کرنے پر 300 سے زائد میٹرز اتار لیے گئے۔ انڈسٹریز، گھریلو اور کمرشل صارفین بھی شامل، ٹیوب ویل، سنگل اور 3 فیز کنیکشنز کے میٹر منقطع کر دیے گئے۔ تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے۔ بابر بتائے گا۔ بالکل جی، چنوٹ فیسکو ڈویژن کا ڈیٹ ڈیفالٹروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ماہ جنوری کے اندر مختلف جگہوں سے 300 سے زائد جو میٹر تھے وہ اتار لیے گئے ہیں اور 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی ہے۔ لائن سپرنٹینڈنٹ حاجی محمد حذیفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حذیفہ صاحب، کب اور کہاں پر یہ کاروائیاں کی گئی؟ جی، ماہ جنوری میں الحمدللہ چنوٹ ڈویژن کی 5 سب ڈویژنوں میں ڈیٹ ڈیفالٹر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور الحمدللہ ہمارا جو سٹاف ہے، ریکوری کی سٹاف آن تھک محنت کر رہا ہے اور ریکوری کر رہے ہیں اور تقریباً اس ماہ میں 300 سے زائد میٹر اتارے اور 1.5 کروڑ ریکوری ہوئی ہے، جس سے یہ تمام تر سی او فیسکو اور فرسٹ سرکل ایس سی امیر خان صاحب اور ایکسین ڈویژن چنیوٹ ذیشان حیدر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ الحمدللہ ہم بہترین ہمارا سٹاف کام کر رہا ہے۔ بالکل جی، فیسکو افسران کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ ماہ جنوری کے اندر بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ڈیٹ ڈیفالٹروں کے خلاف اور اس مد میں 300 سے زائد ڈیٹ ڈیفالٹر میٹر جو ہے وہ اتارے گئے تھے، جس کی مد میں 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی۔ جی بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے آئینی ترمیم کی تجویز پیش کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں ملک احمد خان کا کہنا تھا، بلدیاتی انتخابات کے لیے آئینی ترمیم ہونی چاہیے، بلدیاتی الیکشن کی مدت کا تعین بھی کرنا چاہیے۔ مزید بولے، کسی کا حق نہیں ملک میں فساد پھیلائے، 9 مئی کے واقعات پر مذاکرات کا مخالف ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا فخر ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، بھارت نے کھیل میں سیاست کو ڈالا، چیئرمین پی سی کے مطالبات جائز تھے۔ آئی سی سی نے پاکستان کو انڈیا سے میچ کھیلنے کی درخواست کی، محسن نقوی نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ٹیم ضرور جیتے گی، جنگ اور کرکٹ کو علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں لالیہ میں سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نون لیگی ٹکٹ ہولڈر NA93 سید محمد رضا بخاری کی بڑی کامیابی ملی ہے۔ لالیہ کے نواحی علاقہ موزہ ونوکا سے سرکردہ شخصیات نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ موزہ ونوکا سے مہر حیات لالی، مہر حفیظ اللہ لالی، مہر جاوید اللہ لالی، مہر شمشیر لالی، مہر بابر لالی، مہر محمد افضل لالی، مہر قاسم آکاش لالی، مہر سہیل لالی، مہر شہریال لالی، مہر مراتب لالی، چودھری خرم شہزاد، مہر عمیر لالی نے اپنی برادری اور معززین علاقہ
समेत ग्रुप सैयद मोहम्मद रजा बुखारी में शमूलियत इख्तियार कर ली और आइंदा इलेक्शन में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सैयद मोहम्मद रजा N93 टिकट होल्डर बुखारी की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर मोअज़्ज़ज़ीन इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर पर्ची माफिया की मनमानियां, गाड़ी पार्क करने की डबल फीस वसूल की जाने लगी। आपको बताएं, मुसाफिर महकमे रेलवे पर बरस पड़े। कहते हैं फैमिली को ड्रॉप करने आए तो 100 रुपए, चंद घंटे बाद 200 से 300 रुपए तक पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। पंजाब के दूसरे बड़े फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया की मनमानियां, स्टेशन पर गाड़ी पार्क करने की डबल फीस वसूल करने लगे। कार पार्क करने की पर्ची फीस 100 से 200 रुपए वसूल की जाने लगी। शहरी महकमा रेलवे के खिलाफ बरस पड़े। शहरियों का कहना था कि फैमिली को ड्रॉप करने आए तो 100 रुपए पर्ची फीस वसूली कर ली जाती है, चंद घंटे बाद 200 से 300 रुपए पर्ची फीस थमा दी जाती है। स्टेशन पर पर्ची माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। महकमा रेलवे ने जो फीस मुकर्रर कर रखी है वो क्यों वसूल नहीं की जा रही। हम 2 मिनट के लिए आते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं, यहाँ पर 100-200 रुपए ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए तो ताकि और इनका अच्छा होना चाहिए। ये इस तरह नहीं होना चाहिए ना। डबल चार्ज लेंदे जी, 1 घंटे तो बाद फिर दोबारा ले लेंदे आ। अगला घंटा होंदा ना तीसरा, उस तो बाद फिर तीसरे डबल 3 चार्ज लेंदे आ। शहरियों का कहना था कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया स्टेशन इंतजामिया की मुबैना मिली बगत से बेलगाम है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन खत्म करवाने का तरीकाकार तब्दील। अब रजिस्ट्रेशन खत्म कराने के लिए कमिश्नर FBR को ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराना होगी। तमाम प्रोसेस भी ऑनलाइन ही मुकम्मल किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नया तरीकाकार मुतारिफ करा दिया। कारोबारी तबके की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन खत्म करवाने के लिए तरीकाकार तब्दील। FBR ने नया तरीकाकार लागू कर दिया। रजिस्ट्रेशन खत्म कराने के लिए कमिश्नर FBR को ऑनलाइन दरखास्त जमा कराना होगी। मुतलका केसेज का प्रोसेस भी ऑनलाइन ही होगा। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद कमिश्नर FBR की जानिब से इजाजत दी जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक मैनुअल तरीके से जमा कराई गई दरखास्तों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जैन के साथ उमैर अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा कस्टम्स की मुख्तलिफ शोबाजात में सरप्लस मुलाजमीन को दूसरे शोबाजात में तब्दील करने की हिदायत। नॉन गेजेटेड मुलाजमीन को ज़रूरत के मुताबिक शोबों में तैनात किया जाएगा। आपको अपडेट करेंगे। खबर है महकमा कस्टम से। महकमा कस्टम्स की मुख्तलिफ शोबाजात में सरप्लस मुलाजमीन को दूसरे शोबाजात में तब्दील करने की हिदायत है। नॉन गेजेटेड मुलाजमीन को ज़रूरत के मुताबिक शोबों में तैनात किया जाएगा। इस हवाले से ज्वाइन किया है तफसीलात के लिए उमैर अजमत ने। जी उमैर बताएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो माली बोझ है सरकारी मुलाजमीन का, उसको कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इसी तनाजुर में बजाय इसके कि नई भर्तियां की जाएं जो स्केल 1 से लेकर 15 तक के मुख्तलिफ सरप्लस मुलाजमीन है, तो उनको एडजस्ट करने के हवाले से पॉलिसी तरतीब दी जा रही है कि वो मुलाजमीन जहां पर जिम्मेदारियां कुछ कम है या वो एक्स्ट्रा मुलाजमीन उन शोबाजात में तैनात है, तो कस्टम्स हुकाम की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उन मुलाजमीन को दीगर शोबाजात में जहाँ पर मुलाजमीन की कमी है वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो क्लैरिकल स्टाफ है और फील्ड स्टाफ है उनके हवाले से जो तब्दीलियाँ की जाएंगी और इस हवाले से हेडक्वार्टर की जानिब से डेटा भी मंगवाया गया है फील्ड फॉर्मेशन से, और फील्ड फॉर्मेशन की जानिब से ये डेटा हेडक्वार्टर को भिजवाया जाएगा और फिर हेडक्वार्टर की जानिब से मुलाजमीन के हवाले से फैसला किया जाएगा कि किन किन मुलाजमीन को किन शोबाजात में और किन शहरों में ट्रांसफर किया जाएगा और मुलाजमीन की कमी को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाए। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, हमारे साथ थे, तफसील अपडेट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में नेफ्रोलॉजिस्ट की सीटें खाली। डॉक्टर्स की अदम तैनाती से डायलिसिस के मरीजों की मुश्किलात बढ़ने लगी। फिटसोला कराने के लिए मरीजों की परेशानियां भी जो की तो बरकरार। लवाहिकीन हुकूमत के सामने गड़गड़ाने लगे। DH के अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती का मुतालबा कर दिया। डायलिसिस के मुतअद्दिद मरीज रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख करते हैं, जबकि खून की फिल्ट्रेशन के लिए फिस्टोला करवाने के लिए मरीजों की मुश्किलात जूं की तूं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की अदम दस्तयाबी के बायस डायलिसिस के मरीज शदीद परेशानी का शिकार है। मरीजों के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की तैनाती यकीनी बनाए ताकि डायलिसिस के मरीजों की मुश्किलात कम हो सके। डॉक्टर की कमी है, सुबह 8 बजे जाएं, अभी टाइम मेरे ख्याल में 12:30-1 हो गए। कोई पेशेंट कोई मतलब चेकअप नहीं मिला, ना कोई डॉक्टर कहता है इधर जाओ, कोई डॉक्टर कहता है इधर जाओ। हम कसम से जलील हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नेफ्रोलॉजिस्ट की अदम दस्तयाबी के बायस दीगर डॉक्टर्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।
खबर आपको दें, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल एक मरतबा फिर से लावारिस हो गया। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मलिक मकबूल अहमद का ओहदा खत्म हो गया। मकबूल अहमद को इजाफी चार्ज पर 3 माह के लिए ओहदे पर तैनात किया गया था। खबर है फैसलाबाद से, आर्ट काउंसिल एक मरतबा फिर से लावारिस हो गया है। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मलिक मकबूल अहमद का ओहदा खत्म हो गया। मलिक मकबूल अहमद को इजाफी चार्ज पर 3 माह के लिए ओहदा पर तैनात किया गया था। आपको फैसलाबाद से खबर दें, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल एक मरतबा फिर से लावारिस हो गया। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मलिक मकबूल अहमद का ओहदा खत्म हो गया है। टोबा टेक्सिंग में माह रमजान से कबल इलेक्ट्रिक बसों के चलने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक बसों की इब्तदाई तकरीब 17 फरवरी को मुतवक्के। इंतजामिया ने तकरीब की तैयारियां शुरू कर दी। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इब्तदाई तकरीब होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 इलेक्ट्रिक बसें टोबा भिजवाई गई हैं। आपको खबर दें टोबा टेक्सिंग से, टोबा टेक्सिंग में माह रमजान से कबल इलेक्ट्रिक बसों के चलने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक बसों की इब्तदाई तकरीब 17 फरवरी को मुतवक्के। इंतजामिया ने तकरीब की तैयारियां शुरू कर दी। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इब्तदाई तकरीब होगी। पंजाब की हुकूमत की जानिब से 15 इलेक्ट्रिक बसें टोबा भिजवाई गई हैं। फैसलाबाद शहर में सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके। यूसुफ टाउन से मुल्हका गलियों में सीवरेज का पानी मौजूद। नमाजियों को मस्जिद जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन कहते हैं गली में कई रोज से पानी जमा। वासा इंतजामिया बात सुनने को तैयार नहीं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे तलहा बाजवा से। तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा ने शहर फैसलाबाद को लवारिस छोड़ दिया। शहर फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल हल ना हो सके, इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसुफ टाउन मेन बाजार गली नंबर 10 में। बात करते जाएं तो अरसा दराज से यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है, जिसके बाइस इलाके में ताफुन फैल रहा है। इलाका मकीन जो है वो घरों तक ही महसूर होके रह गए हैं। नमाजी हजरात जो है वो मस्जिद जाने से भी कासिर हैं। ऐसा लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जनाब मुझे बताएं, कितना अरसा हो गया इस हालत को, क्या कहना चाहते हैं? तकरीबन 2 साल के करीब हो गया जी। एक मस्जिद इधर आ, एक मस्जिद इधर आ, यह मामबारगा चौंक हैगा, यह 10 नंबर गली यूसुफ टाउन मेन बाजार आ। 2 साल तो इत्थे पानी का निज़ाम जिहड़ा सीवरेज का बहुत गलत होया। असी वासा च भी गए, MD ऑफिस भी गए हैं, असी DCO ऑफिस भी गए हैं, मियाँ अब्दुल मनान साहब को भी गए हैं, लेकिन साड़ी किसी ने सुनी ही नहीं, ना ही कोई इत्थे आया। जी बात करते थे, इलाका मकीनों का भी यही कहना है कि बारहा मुतलका इंतजामिया से भी अपील की है, लेकिन ताहाल हालत जो है वो जू की तू है। मशीन तो यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन तकरीबन 1 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद जो यहाँ पे सीवरेज से गंदा पानी मौजूद है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। जनाब आप मुझे बताएं कि घरों तक महसूर होकर रह गया, गंदगी के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं, क्या कहेंगे? भाई यहाँ पे बाहर निकलना इतना मुश्किल है। बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं यहाँ पानी पे। नमाजी रात गुजरते हैं, नमाज पढ़नी मुश्किल हो जाती है। लोग यहाँ पे बदवाएं देते हैं इनको। ये किस मुंह से आएंगे हमारे पास वोट मांगने के लिए? हम तो इनके पास जा कर थक गए, कोई बात सुनने वाला नहीं है। हम लोग तो यहाँ घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ना बच्चे दुकान पे जा सकते हैं, ना कि सौदा सरफ लेने जा सकते हैं। परेशानी का इतना आलम है और स्मेल इतनी, यहाँ पे आप खड़े होंगे आपको अंदाजा हो रहा होगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और बीमारियां फैल रही हैं इससे। जी यहाँ पे बदबू इतनी है कि खड़ा होना जो है वो मुहाल है, लेकिन इलाका मकीन इसी ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर ही मजबूर है। उन्होंने बारहा मुतलका इंतजामिया से अपील की है, लेकिन ताहाल हालत जो है वो जू की तू है। उनका यही मुतालबा है वासा हुकाम से कि जल्द अज जल्द पानी की निकासी का सिलसिला जो है इसको यकीनी बनाया जाए और यहाँ पे साफ सुथराई का अमल इसको यहाँ पे यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया तलहा बाजवा अपडेट करने के लिए। चोरकोट में दिन दिहाड़े मोहल्ला गाजी पीर में चोरी की वारदात पेश आई। नामालूम चोर लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात ले उड़े। अहले खाना घर को ताला लगाकर गए हुए थे। वापस पहुंचे तो नामालूम चोर वारदात करके फरार हो चुके थे। खबर है शोरकोट से, दिन दिहाड़े मोहल्ला गाजी पीर में चोरी की वारदात। नामालूम चोर लाखों रुपए तलाई जेवरात ले उड़े। अहले खाना ताला लगाकर गए, वापस घर पहुंचे तो चोर सफाया कर चुके थे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाले मुलजमान की पकड़ दखड़। अदालत ने 3 मुलजमान को मजमूई तौर पर 14 माह की कैद सुना दी। आपको बताएं, मुलजिम शौकत, सैफुल्ला और मोहम्मद सईद को सजा सुनाई गई। मुख्तलिफ दफात के तहत 2.5 लाख रुपए जुर्माना की सजा भी है। सीनियर सिविल जज जमील भट्टी ने दर्ज मुकदमे में फैसला सुनाया। आपको अपडेट करेंगे। खबर है, मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाले मुलजमान की पकड़ दखड़। अदालत ने 3 मुलजमान को मजमूई तौर पर 14 माह कैद की सजा सुना दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सीनियर सिविल जज मोहम्मद जमील भट्टी हैं और इनकी अदालत में
फूड अथॉरिटी की जानिब से दायर एक मुकदमे से मुतलिक समाअत हो रही थी और इसमें मुल्जमान पर इल्जाम था कि ये मुर्दा मुर्गियां जो थे वो फरोख्त कर रहे थे और इस सिलसिले में इस्तगासा जो था वो दायर किया गया था, जिसके बाद केस की समाअत सीनियर सिविल जज मोहम्मद जमील भट्टी की अदालत में हो रही थी, जहाँ अदालत ने जुर्म साबित होने पर 3 मुल्जमान को 14 माह कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया है। ताहम अदालत ने दीगर मुल्जमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने के अहकाम भी जारी किए हैं। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए आज़ादा हुसैन। आपको बताएं, जंग ज़िले इंतजामिया का हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनी मालिकान के खिलाफ बड़ा इकदाम। बगैर मंजूर शुदा लेआउट प्लान और मखसूस प्लॉट नंबर के फर्द मलकियत के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर इम्तियाज़ मोहसिन की जानिब से अहकाम जारी। किसी भी रजिस्ट्री में वाज़ेह प्लॉट नंबर के बगैर इंतकाल कबूल नहीं किया जाएगा। आपको अपडेट करें, अहम खबर है, जंग से जंग ज़िले इंतजामिया का हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनी मालिकान के खिलाफ बड़ा इकदाम। बगैर मंजूर शुदा लेआउट प्लान और मखसूस प्लॉट नंबर के फर्द मलकियत के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर इम्तियाज़ मोहसिन की जानिब से अहकाम जारी किए गए। किसी भी रजिस्ट्री में वाज़ेह प्लॉट नंबर के बगैर इंतकाल कबूल नहीं किया जाएगा। आपको बताएं, फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम की तकरीब। स्पेशल अफराद में 32 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। तकरीब में नून लीगी रहनुमा आज़ाद अली तबस्सुम, टिकट होल्डर उमर अहमद इस्तार खान और दीगर ने शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मरियम रजा से। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के अंदर आज माजूर अफराद के अंदर असिस्टेंट डिवाइसेस जो हैं वो तकसीम की गई हैं, जिसके अंदर 32 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स जो हैं वो तकसीम की गई हैं। पहले व्हील चेयर्स जो थी वो दी जा रही थी मैनुअल थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स दी जा रही हैं ताकि वो माजूर अफराद जो बिल्कुल चल नहीं सकते या फिजिकली ठीक नहीं है वो इस व्हील चेयर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पर खसूसी शिरकत जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम MP और के साथ साथ दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से शिरकत की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कि नून लीगी हुकूमत जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, लोगों के लिए काम भी कर रही है, क्या कहेंगे सर? जी, मैं ये समझता हूँ कि जब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा इक़्तिदार से आई हैं, इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन उनको 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में कोई दिन ऐसा नहीं है जब उन्होंने अवाम की भलाई के लिए किसी न किसी मंसूबे का ऐलान ना किया हो। और वो सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पे उनके हर ऐलान को आप देख रहे होंगे कि अमली तौर पे तमाम उनके मंसूबे जो हैं अवाम की बेहतरी के लिए मौजूद हैं। इसी तरह से स्पेशल लोगों के लिए उन्होंने, जैसे स्पेशल लोगों के लिए हिम्मत कार्ड हैं, ये असिस्टेंट जो है उनकी असिस्टेंस के लिए आलात जो हैं वो फ्राहम किए गए हैं। इस तरह से काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया है। धीरानी प्रोग्राम है, लेबर्स के लिए लेबर कार्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा चाहती हैं कि उनका पंजाब जो है उसके लोग जो हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम ना हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ डिविजनल डायरेक्टर मौजूद हैं। मैडम बताइएगा क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? बहुत शुक्रिया मरियम। हमेशा की तरह पंजाब गवर्नमेंट की हर एफर्ट जो है वो पहले से भी बेहतर होती है, और स्पेशली अगर हम PWDs के हवाले से बात करें तो उसके लिए जो 2 पैकेज स्पेशली आए थे, एक इनका फाइनेंशियल असिस्टेंस का पैकेज था जो हिम्मत कार्ड की सूरत में अभी तक रवां दवां है, और दूसरा हमारा असिस्टिव डिवाइसेस का था। अब असिस्टिव डिवाइसेस में आप उन लोगों के चेहरों पर खुशी के तासुरात देखिए कि जो कहीं एक जगह पर बैठे होते थे और डिपेंडेंट होते थे कि कोई उनको उठा के दूसरी जगह पर, अब वो खुद इस काबिल हो चुके हैं कि अपनी मोबिलिटी को वो खुद इंजॉय कर सकते हैं। और इस चीज़ का रिवार्ड तो अल्लाह ताला ने देना, हमारी तो सबकी छोटी सी एफर्ट होती है और हम गवर्नमेंट का पार्ट हैं, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनकी तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको बेहतर तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, तमाम प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और आज तकरीब का तमाम जो है बेहतरीन तरीके से किया गया। जी बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। रोबोटिक सिंह में महकमा ज़राअत की जानिब से बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब में माहौल दोस्त कीड़े पाले जाएंगे जो कि किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे ताकि ज़रूरी जहर को कम किया जा सके। असिस्टेंट डायरेक्टर सादिया परवीन का कहना था किसान दोस्त कीड़ों में कार्बोस्टाइड और ट्रामाकोरा ग्रामा है। किसान दोस्त कीड़ों से फसल की पैदावार में इजाफा होगा।
पहले बताना चाहूँगी कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबॉर्ट्री जो है वो ज़िला टोबा टेक सिंह में महकमा ज़राअत तोसी डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में कायम है और इसमें 2 किस्म के कीड़े क्राइसोपरला कॉर्निया और ट्राइकोग्रामा स्पीशीज़ इसके अंडे तैयार किए जाते हैं, इनकी अफजाइश की जाती है और इसके कार्ड्स जो हैं, अंडे वाले कार्ड्स जो हैं वो किसान भाइयों को मुफ्त फराहम किए जाते हैं। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि ये 1 एकड़ में 20 कार्ड लगाए जाते हैं। सुबह या शाम के वक्त इन कार्ड्स को लगाया जाए खेतों में और इसके 15 दिन के बाद आप ये कार्ड्स दोबारा जो है वो फील्ड में लगाएं। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि ज़रूरी जो इसकी जो पैदावारी लागत है उसमें कमी आएगी और इसमें ज़रूरी आमदन जो है उसमें इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि जहरों का इस्तेमाल कम होगा तो उससे जो ज़िम्मेदार भाई है उसके अखराज जो पैदावारी उसकी लागत है वो कम हो जाएगी। और इसमें एक तो ये इसका फ़ायदा होगा कि ये माहौल का जो तवाज़ुन है वो भी इससे बरकरार रहेगा और अखराजात में भी कमी होगी, पैदावार में इजाफा होगा और इंसानी सेहत जो है, क्योंकि जो हमारी फसलात हैं वो भी जहरों से उसको जब बचाया जाएगा तो डेफिनेटली इंसानी सेहत पर भी। आगे बढ़े आपको बताएं, जंग में प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑनर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार चेयरमैन प्रोफेसर आसिफ डोटी की मेज़बानी में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लिशारी ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जंग में प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑनर एसोसिएशन वुमेन चैप्टर की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अली अकबर समेत जो है वो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के प्रिंसिपल्स की जानिब से शिरकत की गई। डिप्टी कमिश्नर में से मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैं जी जितने भी हमारे माशाल्लाह जो ऑनर्स आए हैं वो चाहे स्कूल से हों चाहे कॉलेज साइड से हों और जो हमारे जिस तरह ये रिटायर्ड प्रोफेसर साहब हैं, मैं इनको सबको अप्रिशिएट करता हूँ। ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है। ये एक ऐसी कोलैबोरेशन है कि जिसके अंदर आइडियाज़ ये शेयर कर रहे हैं, सेमिनार्स हों, आपके वॉक्स हों, ये डिबेट्स हों, ये क्रॉस लर्निंग है। तो क्रॉस लर्निंग से जितने भी हमारे स्कूल्स आए हैं, ये देखिए आपका बर्डन शेयर कर रहे हैं। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, ये सारे प्राइवेट स्कूल वाले बर्डन शेयर कर रहे हैं और मुझे ये खुशी है कि ये कोई इतने को हाई फाई लेवल की फ़ीस वाले कॉलेज या स्कूल नहीं है। ये बड़े ऑन ग्राउंड लोगों को देखते हुए जो है ना, जो उनको देखते हुए उनकी जो नीड्स हैं कैटर फॉर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है हर जो टीचर्स के, हर ऑनर के, हर प्रिंसिपल के अपने आइडियाज़ से। तो इंशाल्लाह मैंने इनको सजेस्ट किया है कि आपका एक थिंक टैंक होना चाहिए, जो एजुकेशन का थिंक टैंक हो वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट जंग के हवाले से होना चाहिए। तो बड़े माशाल्लाह इधर फर्टाइल माइंड हैं और बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं। इंशाल्लाह ये सब जब कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी तो इंशाल्लाह वो आने वाली जो हमारी नस्ल है जिनकी ये प्रूनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर होगा और जो हमारी स्कूल और कॉलेज साइड है उनके लिए भी एक नई चीज़ सीखने को आएगी। इंतजामिया और प्राइवेट इदारों की जानिब से मुश्तरका काविशें की जाएंगी, तालीमी मेयार को जो है बेहतर बनाया जाएगा। जी शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद प्रेस क्लब इलेक्शन 2026 जारी है। भरपूर वोटिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। फैसलाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद नताइज के इंतजार में मौजूद है। सब अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत के लिए पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। अपडेट करें फैसलाबाद से, प्रेस क्लब इलेक्शन 2026 भरपूर वोटिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। कामरान सईद हमारे साथ हैं। कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, बड़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। फैसलाबाद प्रेस क्लब के इलेक्शन 2026 का आज दिन था। भरपूर वोटिंग आज सारा दिन हुई और उसके बाद इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है और इस वक्त भी जो है इस वक्त भी वोट जो है काउंट किए जा रहे हैं। अगर हम प्रेस क्लब में देखें तो हर तरफ हमें सहाफ़ी बरादरी की बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है जो कि अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सपोर्ट में जो है बैठे हुए हैं और पुरअज़्म है कि उनका उम्मीदवार जो है जीतेगा। इस वक्त सीनियर रिपोर्टर सिटी 41 उमैर अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर भाई, क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? शुक्रिया कामरान। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो जमहूरियत है वो चाहे सोसाइटी की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, मुल्क के अंदर हो, जहाँ पर भी हो, तो ये बड़ी शानदार रिवायत है। और आज देखें यहाँ पर फैसलाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात का मेला सजा हुआ है और जो सैकड़ों वोटर्स हैं उन्होंने आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है कि वो अपने नुमाइंदे जो हैं उनका इंतखाब करेंगे और ताकि वो उनके जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। और उमैर भाई, ये बताइएगा कि आपने बहुत से इलेक्शंस देखे होंगे, इस बार टर्नआउट कैसा देख रहे हैं? ज़्यादा है, कम है, उतना ही है? देखें, आज हमें दिन भर जो है वो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश देखने को मिला। अभी एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि काउंटिंग चल रही है अभी,
और लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम वोटर्स के रश के हवाले से बात करें तो यहाँ पर वोटर्स का दिन भर तांता बना रहा। हर चैनल से, हर इदारे से लोग यहाँ पर मौजूद थे कि वो अपने अपना जो उनका नुमाइंदा है, उनका उम्मीदवार है, उसको वोट कास्ट कर सके। हमारे सिटी 41 से बिलाल डोगर जो एंकर पर्सन है वो भी सदर के कैंडिडेट हैं। इसी तरह हमारे कोलीग राना फजील अहमद हैं, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर के कैंडिडेट हैं। और भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ सीटों पर थे। 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की सीटें थी, उन पर मुकाबला था। सदर की नशिस्त है, इस तरह जो दीगर नशिस्तें हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट है और नायब सदूर की 2 नशिस्तें हैं। इन तमाम सीटों पर जी बहुत शुक्रिया कामरान सईद अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त